Hello everyone, my name is Bharat Lal. I am assistant professor contractual faculty, IET Lucknow. In the last class, we have discussed about the course outcome of power electronics and introduction to power electronics. Okay. In this lecture, we will discuss about uh, power semiconductor devices, and in power semiconductor devices, in this lecture, we will mainly focus on the power diodes. Okay. So, let us discuss the topic. Okay. So, mainly power semiconductor devices are the devices or we can say it is a electronic devices which have very high ratings. That means, we have already studied in case of analog electronics, you have studied in analog electronics that there is a signal type of devices like their rating is approximately very less, but in case of power semiconductor devices the rating is very high. That means, the current rating, voltage rating and power rating are very high in case of power semiconductor devices. So, let us discuss its type. So, you can see here power semiconductor devices mainly classified into two types: two terminal devices and three terminal devices. Two terminal devices means it has only two terminals, okay, that is anode, cathode and anode and cathode terminal. Okay. So, in two terminal devices you can see here there is a pin diode. I, I stand for intrinsic, okay. We will see in this lecture. Next is Schottky diode. So, these two devices are the two terminal devices, and there are three terminal devices also. First is power MOSFET. MOSFET means metal oxide semiconductor field effect transistor. GFET, that is junction field effect transistor. IGBT, insulated gate bipolar junction transistor, and BJT, bipolar junction transistor and thyristor. Okay. So, we have two terminal devices, that is pin diode and Schottky diode, and we have different types of like MOSFET, GFET, IGBT, BJT and thyristor. Okay. So, these are the three terminal devices. So, by the help of three terminal devices we can achieve controllability of the power semiconductor devices. Okay. So, in pin diode and Schottky diode the two terminals, namely anode and cathode, but in case of MOSFET we have gate, source and drain terminal. Okay. Similarly, for GFET also, similarly for IGBT also, and in case of BJT the three terminals are base, emitter and collector terminal, and in case of thyristor the three terminals namely anode, cathode and gate terminals. Okay. So, today's topic mainly is power diode. We will focus on the power diodes, that means how signal diodes become power diode, that means how we will increase the rating of the diodes, that means we have already know about the signal diodes. Okay. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पावर डायोड होता है उसकी रेटिंग हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, कैसे हमारे पास जो सिग्नल डायोड था जिसकी रेटिंग आपकी काफ़ी कम थी उसको हम लोग कैसे इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर डायोड. ओके. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अ पावर डायोड इज अ टाइप ऑफ डायोड दैट इज कॉमनली यूज्ड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट जस्ट लाइक अ रेगुलर डायोड. अ पावर डायोड हैज़ टू टर्मिनल्स and conducts current in one direction. As we know, in case of signal diode it has two terminals, that is anode and cathode, and it works in two modes. One is forward mode and another is reverse mode. यानी एक आपका फॉरवर्ड मोड में काम करता है, एक रिवर्स मोड में काम करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपोलर या यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. ओके. तो हमारा जो पावर डायोड है ये भी आपका सिग्नल डायोड की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो रेटिंग होती है वो आपकी क्या होती है, किलो एम्पियर में इसकी करंट रेटिंग होगी, पावर रेटिंग होगी किलो वाट में, और जो वोल्टेज रेटिंग होगी आपकी वो किलो वोल्ट में होती है. ओके. अ पावर डायोड वेरीज इन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डायोड टू इनेबल दिस हायर करंट रेटिंग. ओके. यानी कि जो पावर डायोड है जैसा कि हमने बताया कि इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. ओके. Diodes are the simplest semiconductor devices having only two layers
2 टर्मिनल्स एंड 1 जंक्शन। ओके, तो यानी जो हमारा जो डायोड होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये आपकी 2 टर्मिनल डिवाइस है, इसके पास में एक जंक्शन होता है और आपका क्या होता है 2 लेयर्स होता है। ओके, तो यहाँ पे नीचे आप क्या देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि ये आपका जो है जो हमारे रेगुलर डायोड्स होते हैं उसका डायग्राम दिया है। यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लाइक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। जब हम लोग इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे हम लोग बनाते हैं डायोड। और कुछ जो आपके चार्जेस होते हैं वो पी साइड से एन साइड और एन साइड से पी साइड ट्रांसफ़र होते हैं और इनके बीच में बनता है एक आपका डिप्लीजन रीजन। इसको हम लोग डिप्लीजन रीजन या फिर स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राइट साइड में इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जिसका एक टर्मिनल आपका एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम बोलेंगे एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको हम बोलते हैं कैथोड टर्मिनल्स। ओके, इसके बाद में यहाँ पे दिया आपका पावर डायोड के बारे में। सो पावर डायोड are also similar to the regular diodes although they vary slightly in their construction। यानी जो हमारा पावर डायोड होता है वो एकदम सिमिलरली आपके जो सिग्नल डायोड थे उसी के तरीके का होता है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा कि वहाँ पे सिर्फ 2 लेयर थी, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने लिया था और एक एन टाइप का लिया था। जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमने बनाया क्या, सिग्नल डायोड। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या चेंजेस है, यहाँ पे भी हम लोग 2 ही टाइप के मटेरियल्स लेते हैं, एक आपका पी टाइप का और आपका एक एन टाइप का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी लेयर है वो हाईली डोप्ड लेयर है। ठीक है, यानी पी को हमने क्या लिया है, हाईली डोप्ड लिया है, एन को भी हमने हाईली डोप्ड और लाइटली डोप्ड 2 लिया है। ओके, तो जो हमने एक तीसरा लेयर कंसिडर किया है जो कि आपका लाइटली डोप्ड रीजन है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये डिप्लीजन रीजन्स को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो ये आपका पावर डायोड है इसके वोल्टेज की सहने की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेटिंग को इम्प्रूव करते हैं। यानी जो हमारे पास सिग्नल डायोड का कंस्ट्रक्शन था उसी कंस्ट्रक्शन को हम लोग आगे बढ़ा के इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इपिटैक्सियल लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं इपिटैक्सियल लेयर, इसको इंसर्ट करते हैं। इसकी वजह से होता ये है कि जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, और जो आपकी ओवरऑल रेटिंग आएगी इस पावर डायोड की वो क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद में जो हमने अभी आपको बताया उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि द एन माइनस लेयर इज़ द की फीचर ऑफ द पावर डायोड विच मेक्स इट सुटेबल फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। यानी जो हमने एन माइनस लेयर इसके अंदर इंसर्ट किया है उसी का मेन पर्पज़ क्या था कि हम लोग को पावर रेटिंग, करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना है सिग्नल डायोड की। तो हमने जो एन माइनस लेयर लिया है वही आपका क्या कर रहा है, उसकी रेटिंग्स को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ओके, this layer is very lightly doped, that is n minus, almost intrinsic, and hence the devices is known as pin diode। okay, यानी कि जो हमारा n माइनस हमने जो मटेरियल लिया है वो ऑलमोस्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बराबर होता है। इंट्रिंसिक मतलब होता है आपका कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, उसके बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पिन डायोड। यहाँ पे जो आपका आई है, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रिंसिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, वेयर आई स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक। एज वी कैन सी इन फिगर, हम लोग जो लास्ट फिगर अभी देखे हैं उसमें क्या कह रहा है कि द नेट चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ द स्पेस चार्ज रीजन इज स्टिल मेंटेन्ड एज वाज द केस ऑफ सिग्नल डायोड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पेस चार्ज रीजन में क्या होता है, आपका जितने नंबर ऑफ आपके पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर्स में आपके क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो वही बता रहा है कि जो आपका क्या नाम है, जो आपका पावर डायोड है उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को या फिर चार्ज न्यूट्रलिटी को क्या कर रहे हैं, मेंटेन करके रख रहे हैं। ओके, इसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए कि द थिकनेस ऑफ स्पेस चार्ज रीजन is quite high and deeply penetrated into the n minus region। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका हमारा क्या होता है, जो आपका थिकनेस होता है पावर डायोड के केस में, किसका थिकनेस, जो आपका डिप्लीजन रीजन बनता है उसका जो थिकनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, क्वाइट हाई एंड डीपली पेनिट्रेटेड इनटू द n माइनस रीजन। और जो आपका
जो डिप्लीजन रीजन बनेगा वो n माइनस रीजन में ज़्यादा आपका क्या करता है, लाई करेगा। ओके, यानी कि जो हमारा डिप्लीजन रीजन बनेगा वो n माइनस रीजन में ज़्यादा लाई करता है, p प्लस रीजन में कम लाई करता है। ओके, और इससे हमारी क्या बढ़ती है, इससे हमारी बढ़ती है आपकी डिप्लीजन रीजन की वैल्यू क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करने में कैपेबल होता है। ओके, दिस इज ड्यू टू इट्स लाइट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, एज वी नो दैट द थिकनेस ऑफ द स्पेस चार्ज रीजन इंक्रीजेस अ डिक्रीज इन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी स्पेस चार्ज रीजन या फिर डिप्लीजन रीजन की वैल्यू क्या करती है, डिप्लीजन रीजन का एरिया अगर हमारा इंक्रीज करता है तो जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, दिस इंक्रीज थिकनेस ऑफ द डिप्लीजन रीजन और द स्पेस चार्ज रीजन ऑफ द डायोड टू ब्लॉक लार्जर रिवर्स बायस वोल्टेज। यानी कि जो हमारा n माइनस हमने लेयर लिया है, इसके चलते हमारी क्या होती है कि जो हमारा डिप्लीजन रीजन है या स्पेस चार्ज रीजन है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और इससे ये क्या करता है, लार्जर रिवर्स बायस वोल्टेज को ब्लॉक करने की इसकी कैपेबिलिटी हो जाती है। ओके, एंड हेंस हैव अ ग्रेटर ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इसी को बता रहा है कि जब ये ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है तो इसका मतलब कि आपका ये ज़्यादा वोल्टेज को क्या कर सकता है, ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा, अब जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो क्या होता है कि जब हम लोग किसी डिवाइस पे क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसके क्या नाम है, उसके वोल्टेज सहने की मैक्सिमम आपका कितना वोल्टेज सह सकता है वो डिवाइस, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज आपका दो टाइप का होगा, एक फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, एक रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी कि जब हम लोग पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई करेंगे उस समय वो मैक्सिमम कौन सा वोल्टेज है जिसके बाद आपका जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। ब्रेक डाउन करने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को वो उसके बाद खो देता है। यानी कि उस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में अगर हम लोग ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे उस डिवाइस को तो क्या हो जाएगा, आपका डिवाइस डैमेज हो जाएगा। ओके, however adding this n minus layer significantly increase the ohmic resistance of the diode। okay, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम लोग n माइनस लेयर इंसर्ट कर रहे हैं इससे हमारा ओमिक रीजन यानी कि जो हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज होगा इसका मतलब जो हीट की वैल्यू है उस डिवाइस के लिए वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए आपका लिखा है कि लीडिंग टू मोर हीट जनरेशन, यानी कि जो आपका n माइनस लेयर है इससे आपका ओमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और ओमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, आपका आई स्क्वायर आर टी इंटू टी यानी जो आपका हीट है वो इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। हेंस पावर डायोड कम विद द वेरियस माउंटिंग ऑफ द प्रॉपर हीट डिसिपेशन। यानी कि जो इसके अंदर हीट डेवलप हो रही है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, माउंटिंग करते हैं, यानी कि इसके ऊपर एक मास्क लगाते हैं कि वो क्या करेगा, जो भी इस डिवाइस के थ्रू हीट डेवलप होगा उसको क्या करेगा, वो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड। इसकी खास बात क्या है, जो आपका सिग्नल डायोड था उसी के सेम तरीके से आपका इसका भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो आपका सिग्नल डायोड था उसमें क्या होता था, उसमें आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता था। तो यहाँ पे जो रेड से रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका सिग्नल डायोड का है, उसका कट इन वोल्टेज होता था 0.7 वोल्ट, और इसके केस में होता है आपका 1 to 1.2 वोल्ट। ओके, जो कट इन वोल्ट होगा यानी कि मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन और ट्रिगर द डायोड। तो आपको पावर डायोड के केस में याद रखना है कि जो इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, लीनियरली इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सिग्नल डायोड था वहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता था। ओके, तो ये आपका जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, और ये क्या करता है पावर डायोड का, ये आपका लीनियरली इंक्रीज करता है। ओके, तो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जब हम लोग पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो हमें क्या नाम है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलती है। यानी आपका ये फॉरवर्ड कंडक्शन
को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फॉरवर्ड मोड में जब काम करेगा तो इस तरीके का आपका इसका सर्किट, इसका जो ग्राफ है इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से जब हम लोग क्या करेंगे, पावर डायोड के क्रॉस में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि क्या नाम है, एक निश्चित वोल्टेज के बाद, यानी कि निश्चित नेगेटिव वोल्टेज के बाद क्या हो जाएगा, वो रिवर्स में क्या कर जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। यानी कि वो माइनस में जो हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उसके भी सहने की जो कैपेबिलिटी होगी, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज हम लोग सप्लाई करेंगे तो ब्रेक डाउन कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो VRRM है ये आपका क्या नाम है, रिपीटेटिव रिवर्स मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये पावर डायोड का है मैक्सिमम रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज या फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज। ऐसे ही अगर हम लोग सिग्नल डायोड की बात करें तो उसका क्या होता है, उसका थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो जो यहाँ पे रेड रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड बता रहा है आपका ये सिग्नल डायोड के लिए है, और जो ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है आपका फॉर द केस ऑफ पावर डायोड। तो पावर डायोड और सिग्नल डायोड्स में की कैरेक्टरिस्टिक में क्या अंतर आपको समझना है कि इसका जो मिनिमम कट इन वोल्टेज होगा या थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो होता है 1 वोल्ट टू 1.2 वोल्ट, बट इन द केस ऑफ सिग्नल डायोड द कट इन वोल्टेज इज फॉर सिलिकॉन डायोड it is 0.7 volt and for germanium diode it is 0.3 volt। ओके, सिमिलरली रिवर्स ब्लॉकिंग में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो आपका सिग्नल डायोड है उसके केस में क्या होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, या फिर पीक इनवर्स वोल्टेज हम लोग बोलते हैं। और जो आपका पावर डायोड होगा उसके केस में जो रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज होगा वो ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि इन अ सिग्नल डायोड ऑफ फॉरवर्ड a biased region the current increases exponentially, however in power diode, यानी आपको बता रहा है कि जो आपकी करंट की वैल्यू होगी वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है इन द केस ऑफ सिग्नल डायोड, बट इन केस ऑफ पावर डायोड हाई फॉरवर्ड करंट लीड्स टू द हाई ओमिक ड्रॉप which dominates the exponential growth and curve increases almost linearly। क्योंकि इसमें क्या होता है, पावर डायोड के केस में ओमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी करंट की वैल्यू हो वो काफ़ी शार्पली इंक्रीज करता है, काफ़ी तेज़ी से क्या करेगा, स्ट्रेट आगे बढ़ेगा। ओके, यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि पावर डायोड के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलेगी, जो करंट की वैल्यू वेरी करेगी वोल्टेज के साथ, वो क्या करेगी, लीनियरली वेरी करेगी। बट इन केस ऑफ सिग्नल डायोड द वैल्यू ऑफ करंट वेरीज विद द वोल्टेज एक्सपोनेंशियली। ओके, इसके बाद में जो हमने बताया कि यहाँ पे क्या लिखा है कि द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट द डायोड कैन विथस्टैंड इज डिपिक्टेड बाय VRRM, यानी कि हम लोग मैक्सिमम जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है या मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है जो आपका पावर डायोड सह सकता है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है VRRM से। यहाँ पे RRM क्या है, रिवर्स रिपीटेटिव वोल्टेज। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, above this voltage the reverse current becomes very high abruptly, and as the diode is not designed to dissipate such a high amount of heat it may get destroyed। यानी क्या होगा कि जब हम लोग निगेटिव में इतना ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि इसके बाद, इस वोल्टेज के बाद क्या हो जाएगा आपका कि ये क्या करेगा, वहाँ पे हीट की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि क्या करेगी, आपकी डिवाइस को ही डैमेज कर देगी। यानी जो डिवाइस के वोल्टेज सहने की कैपेबिलिटी है वो कितनी है, वो आपकी VRRM है। अगर हम लोग क्या करेंगे, इससे ज़्यादा वोल्टेज क्या करेंगे, डिवाइस को सप्लाई करेंगे तो डिवाइस क्या कर जाएगी, आपकी डैमेज कर जाएगी। ओके, एंड दिस वोल्टेज में ऑल्सो कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, इसके बाद में आपका आता है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपकी, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पावर डायोड को ऑफ करते हैं तो भी क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पावर डायोड में क्या होगा कि कुछ चार्ज कैरियर्स क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें पूरी तरीके से उसको फॉरवर्ड से रिवर्स में लाना होता है। तो क्या नाम है, जब हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज सप्लाई बंद कर देंगे तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होगी, जीरो आएगी, लेकिन उसमें स्टोर्ड चार्ज कैरियर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, वो कुछ और टाइम के लिए ऑन रहता है। तो हमें जो क्या नाम है, जब हमने स्विच ऑफ कर दिया उसके अंदर फिर भी कुछ चार्ज कैरियर्स बच जाते हैं, उन चार्ज कैरियर्स को जो हम लोग रिमूव करेंगे तब जाके हमारा जो डिवाइस होगा वो पूरी तरीके से किस में आएगा, पूरी तरीके से इनिशियल स्टेट या फिर जीरो स्टेट में आएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या नाम है, उसके
उस डिवाइस के क्रॉस में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी और करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो द फिगर डिपिक्ट्स द रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पावर डायोड व्हेन एवर द डायोड इज स्विच्ड ऑफ, यानी जब हम लोग डायोड को स्विच ऑफ करते हैं द करंट डिकेज फ्रॉम IF टू जीरो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइस को ऑफ करेंगे तो जो करंट की वैल्यू वो क्या कर रही है, IF से इस तरीके से रिड्यूस कर रही है, इस तरीके से घट रही है। लेकिन क्या होगा, इसके अंदर जो स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स, जो कुछ चार्ज कैरियर्स बचे हुए हैं, उनकी वजह से क्या करेगा, वो निगेटिव डायरेक्शन में भी क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए कंडक्ट करेगा। ओके, और फिर जो है धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे आपका ये जीरो को प्राप्त कर लेगा। ओके, फिर दिया है दिस रिवर्स करंट अटेन्स अ पीक IRR, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो पीक को ये प्राप्त कर रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, IR, यानी कि जो हमारा रिवर्स करंट है वो कितना मैक्सिमम तक जा सकता है उसको यहाँ पे IRR से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, अटेन्स स्टार्ट अप्रोचिंग जीरो वैल्यू एंड फाइनली द डायोड इज ऑफ आफ्टर टाइम TRR, यानी कि टाइम TRR को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है जब ये जीरो पे पहुँच रहा है, जब आपका ये जीरो पे पहुँच रहा है और उसके बाद में रिवर्स में कंडक्ट होने के बाद में फिर से ये जीरो पे आ जाए। ठीक है, तो इस पूरे टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है आपका TRR से। तो ये TRR क्या है आपका, रिवर्स रिकवरी टाइम। ओके, यहाँ पे आप डायग्राम में क्या देख सकते हैं कि TRR इक्वल टू TA प्लस TV, यानी इसने क्या किया है कि जो यहाँ तक का टाइम लग रहा है आपका, यानी कि IRR तक अचीव करने में जो टाइम लग रहा है जब वो निगेटिव में जा रहा है उसको हम लोग TA से रिप्रेजेंट किए हैं। उसके बाद में क्या नाम है, उसके बाद में जो टाइम लग रहा है इसको जीरो होने में करंट की वैल्यू को, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, TB से रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि TRR इक्वल टू TA प्लस TB, where TA represent time when charge from depletion region is removed and TB is the time when charge from semiconductor region is removed, यानी कि जो आपके चार्ज कैरियर्स इसमें कुछ बच जाते हैं वो कुछ सेमीकंडक्टर रीजन में स्टोर हो जाते हैं और कुछ आपके डिप्लीजन रीजन में स्टोर हो जाते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले आपका जो चार्ज कैरियर्स है वो क्या होगा, डिप्लीजन रीजन से रिमूव होगा, उसके बाद में आपका सेमीकंडक्टर रीजन से क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, और फिर हम इसी डायग्राम से बता सकते हैं कि क्या नाम है, IRR की वैल्यू TA इंटू DI/dt। ओके, वेयर DI/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्स करंट। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसी डायग्राम से हम लोग निकाल सकते हैं QR इक्वल टू, QR मतलब हो गया आपका रिवर्स रिकवरी चार्ज की जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ IRR एंड TRR, यानी रिवर्स रिकवरी टाइम्स और रिवर्स रिकवरी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके टर्म्स में हम कितना चार्ज हमारा प्रेजेंट था किसमें, सेमीकंडक्टर रीजन में, और आपका सेमीकंडक्टर रीजन में, और आपका किसमें प्रेजेंट था, और आपका प्रेजेंट था एक आपका दूसरा रीजन, एक आपका डिप्लीजन रीजन। ओके, तो यानी जो आपके डिप्लीजन रीजन और सेमीकंडक्टर रीजन में चार्जेस प्रेजेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और यहाँ से फिर हम लोग TRR की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा। ओके, और जब हम लोग ये मानते हैं कि क्या नाम है, ये काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही फास्ट हो रहा है, तो हमने मान लिया है कि जो हमारा TA और TR की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा IRR की, वो आपकी ये निकल के आती है। ओके, इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका सॉफ्टनेस फैक्टर। सॉफ्टनेस फैक्टर क्या बता रहा है कि अनदर इंटरेस्टिंग पैरामीटर इज डिफाइंड फॉर पावर डायोड फ्रॉम इट्स टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी जो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक थी इससे हम लोग एक सॉफ्टनेस फैक्टर डिफाइन करते हैं। ये क्या बताता है आपका, इट इज़ द रेशियो ऑफ TB अपॉन TA। TB आपका क्या था कि जो सेमीकंडक्टर रीजन में चार्ज कैरियर्स थे उसको रिमूव करने में कितना टाइम लग रहा है, और TA क्या है आपका, जो डिप्लीजन रीजन में चार्ज कैरियर्स हैं उसको रिमूव करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। तो क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी फैक्टर और सॉफ्टनेस फैक्टर इज इक्वल टू TB अपॉन TA।
इफ अ डायोड हैज सेफ्टी फैक्टर और सॉफ्टनेस फैक्टर इक्वल्स टू यूनिटी, इट इज़ नोन एज सॉफ्ट रिकवरी डायोड। ओके, अगर हमारे पास कोई ऐसा डायोड है या पावर डायोड है जिसका आपका सॉफ्टनेस फैक्टर 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट रिकवरी डायोड, यानी ये काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। ओके, फॉर सेफ्टी फैक्टर और सॉफ्टनेस फैक्टर लेस देन यूनिटी, इट इज़ नोन एज फास्ट और स्नैपी रिकवरी डायोड। अगर आपका क्या हो, अगर सॉफ्टनेस की फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे फास्ट रिकवरी डायोड या फिर स्नैपी रिकवरी डायोड बोलते हैं। ओके, इसके बाद में ये कुछ आपके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, किसके, पावर डायोड्स के एप्लीकेशन दिए हैं। तो जो हमारे पावर डायोड्स हैं उसका क्लासिफिकेशन बता रहा है कि द पावर डायोड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड एंड शॉर्ट की डायोड्स। इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है किस जनरल पर्पस डायोड की, यानी रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज जो होता है आपका 50 वोल्ट से 5000 वोल्ट या फिर 50 वोल्ट टू 5 kV तक होता है आपका। इस तरीके से फास्ट रिकवरी डायोड का भी कितना होता है, 50 टू 3 kV। और जो शॉर्ट की डायोड्स होते हैं इसका रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज कितना होता है, 100 वोल्ट। ओके, इसकी करंट रेटिंग बता रहा है कि 1 एम्पियर टू सेवरल थाउजेंड एम्पियर्स, यानी जो जनरल पर्पस डायोड होते हैं इनकी 1 एम्पियर से लेके किलो एम्पियर्स तक में रेंज होती है। लेकिन इसका जो रिकवरी टाइम है, ओके, यानी इसमें से स्टोर चार्ज कैरियर को रिमूव करने में जो टाइम लग रहा है वो 25 माइक्रोसेकंड लगता है। ओके, और इसी तरीके से फास्ट रिकवरी डायोड में लेस देन 5 माइक्रोसेकंड, और इन केस ऑफ शॉर्ट की डायोड काफ़ी कम समय में ही हम लोग क्या करते हैं चार्ज कैरियर्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, तो इन तीनों में क्या है, अपना अपना सभी का महत्व है। जो आपका शॉर्ट की डायोड है, अगर हमें ज़्यादा स्पीड वाला डायोड चाहिए तो हम लोग शॉर्ट की डायोड यूज करेंगे। अगर हमें ज़्यादा करंट रेटिंग, ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग की डायोड चाहिए होगा तो हम लोग जनरल पर्पस डायोड यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसी के बेस पे एप्लीकेशन डिफाइन किया गया है कि जो आपका जनरल पर्पस डायोड होता है ये यूपीएस में यूज होता है, बैटरी के चार्जर्स में यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी के चार्जर्स में जनरल पर्पस डायोड लगा होता है, वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं, ट्रैक्शंस में यूज करते हैं। ओके, इसी तरीके से आपका जो फास्ट रिकवरी डायोड होता है वो एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई में यूज होता है। आपका कम्यूटेशन सर्किट यानी कि डिवाइस को ऑफ करने में जो हम लोग डायोड यूज करते हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट, वहाँ पे यूज करते हैं। चॉपर सर्किट में यूज करते हैं, और इंडक्शन हीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, फास्ट रिकवरी डायोड का यूज करते हैं। इस तरीके से हम लोग जानते हैं शॉर्ट की डायोड की क्या होती है, काफ़ी फास्ट होता है। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग पावर सप्लाईज, यानी जहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की पावर सप्लाई चाहिए होगी वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।